This conference will now be recorded. ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଶିବିରର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ସହପାଠୀ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସାଇରାମ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୈସର୍ଗିକ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ଚିରନ୍ତନ ସଖା, ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସୁହୃଦ, ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ପ୍ରକୃତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିବା ସେ ପରମାତ୍ମା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏକ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଲାଭ କରିସାରିଛେ ଏ ଜୀବନରେ। ଏଠି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ, ଆମେ ଶୀତ ତାପ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଲାଭ କରିସାରିଛେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ସମର କୋର୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶିବିର ରହିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ସାଇଙ୍କର 1972 ମସିହାରେ ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ହ୍ୱାଇଟଫିଲ୍ଡ ସ୍ଥିତ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଏଇଭଳି ବଛା ବଛା ପ୍ରାୟ 200-250-300 ପିଲା ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେଠାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଶିବିରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ସମଗ୍ର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଠିକି ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସବୁ ସାର କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ରହି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, those 300 students, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଆମେମାନେ ଏଠି ମାସେ ରହିବୁ, ଅବସ୍ଥାନ କରିବୁ, ଏଇଭଳି କିଛି ପରିବେଶରେ ଆମେ ରହିବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆମଠୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ବା ବିଶ୍ୱକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ? ଭଗବାନ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। We have to change ourselves. ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା, then there is a possibility that the whole world will be transformed. ଭଗବାନ ଆମଠୁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଭଗବାନ କେବଳ ଏତିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 7 ଦିନରେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ମାନେ ଲାଭ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଲାଇଫ ପାଇଁ it will be a treasure for the whole life. କାରଣ ମୁଁ ସେଟା ମୋର ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ପିକର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡେଲିଭରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଇନଭାଇଟ କରାଯାଇଛି, those are such learned speakers. ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଛି ବାଛି ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡକାଯାଇଛି।
से भली किछि सुयोग्य वक्ता जो माने भगवान को सहित अति निबिड़ भाव रे सेमानकर संपर्क रहिछि एवं जो माने एई विषय वस्तु उपरे सेमानकर प्रगाढ़ ज्ञान रहिछि। ज्ञान माने केवल मस्तक रे ज्ञान बोली भाबंतु नै, सेमानकर अनुभूति संपन्न ज्ञान रहिछि। दे हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज। So those speakers we have invited, ऐसे कई बहुत सारे विद्वान हमारे पास है और आज जो आपको ये संबोधन करने जा रहे हैं द वैदिक संस्कृति, द वैदिक कल्चर ऑफ इंडिया, से होचंती श्रीमान मुरली जाजू भैया। आम समस्तंकर बड़ भाई, तांकर प्रथम परिचय कहीं ना तांकर हृदय बहुत विशाल। तापरे मु जदि आपण मानकु तांकर परिचय प्रदान करिया को जाए, से होचंती सर्वभारतीय श्री सत्यसाई सेवा संगठन रो सर्वभारतीय आध्यात्मिक संयोजक, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर स्पिरिचुअल। एवं मु तांकु आपण मानक सहित इंट्रोड्यूस करिबार गोटे मीडियम आज मात्र भाई को सहित मोर जेतिकी किछि मुहूर्त मु तांको पाखरे पाइछि, मु निजको बहुत धन्य मन करछि। भगवान को तांकर हाथ मुठारे धरिकी से चलती एवं भगवान तांको पाखरे अछंती। ए जो आत्मविश्वास तांको भितर रहिछि सब बेले, तांको प्रचंड शक्ति एवं प्रतिभार अधिकार कर पारि। बहुत सिंपल एवं बहुत, कारण भगवान ही कहते विद्या ददाति विनय। जेतोले आम पाखरे प्रकृत ज्ञानी लोकर प्रकृति कौन, सी विनयी हेतिबो, सी नम्र हेतिबो एवं ता भितर कौन सी प्रकार दंभ बा अहंकार केबे नथिबो। So one such chosen devotee of Bhagavan, his brother Murli Jazu, who is going to address us today on the Vedic culture of India, and why very purposefully Bhagavan has selected this topic in 1972 as the initial address to be given to the students, and going forward so many other facets of Indian cultures are discovered. So initially we must know the original Vedic culture of India. In fact, it is the culture of each one of us. Brother Murli Jajo, he visits everywhere in India, in each state, and address the devotees. And he is a, I would say, personification of devotion. तो आज हमारा परम सौभाग्य है, मैं पूरे तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे बड़े भैया श्री मुरली जाजू को आप लोगों के बीच। और भगवान, हम लोग भैया बहुत दूर दूर से सब जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, लेकिन यहाँ पे ये फोरम में हमको लगता है कि जैसे हम सब साथ मिलके बैठे हैं। और आपको मैं इस समर कोर्स में स्वागत करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आपको जो भी टाइम मिले, क्योंकि मुझे मालूम है समय का पाबंदी आप पर लागू नहीं होता है। जैसे कि अनिल कुमार कामराज बोलते हैं कि स्वामी बोलते हैं तू बैठ, लेकिन मैं रुकता नहीं। तो आपको पाबंदी लगाना तो नहीं है, लेकिन ये जो फोरम है इसमें हमारा जो भी लिमिटेड टाइम है, मैं आशा करता हूं कि आप अपना खाली अपना ज्ञान नहीं, अपना हृदय भी हम सब में बांटे और हमको कृत्य करे। तो विद दिस आई वेलकम यू ऑल and wish
this third phase of summer course a great success in terms of imprinting in our heart a lasting memory for life to bask in the sweetness of divinity. With this, I request the organizer to proceed further, and I will be remaining in this. Of course, I have some phone calls I have to be, but आज का क्लास में भगवान से प्रार्थना करता हूँ ज्यादा मुझे डिस्टर्ब ना करे, सो दैट मैं मुरली जाजू भैया को ज्यादा से ज्यादा सुन सकूं। तो मैं आप सबसे अभी हूँ और ऑर्गेनाइजर को रिक्वेस्ट करता हूँ टू प्रोसीड फर्दर। जय साई राम। साईराम नारायण भाई, आपन को अनेक धन्यवाद हम मन को उद्बोधित करबा पई। मुरली भैया, we all are eagerly waiting to listen from you, from your sweet voice. Sairam, We all remember. So kindly join and take care of the proceedings. Sairam. साईराम भैया। साईराम भैया, साईराम। आवाज आ रहा है? आवाज तो आ रहा है, लेकिन आपका कैमरा घूम गया है भैया। कैमरा कहाँ गया मालूम नहीं, चेक करता हूँ। ठीक कीजिए। पहले तो आपका सूरज दिखाई दे रहा था, अभी सामने दिखाई दे रहा है। गड़बड़ है। नहीं, वो ऊपर मुरली भैया ऊपर देखिए, एक ये होगा, उसको टच करने से वो कैमरा का ऑप्शन है। अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, आपका टोटल कैमरा बंद। हाँ, अभी शेयर कीजिए। हाँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ओके, यस। थोड़ा भैया लाइट की तरफ से थोड़ा होने से आपका थोड़ा डार्क आ रहा है। हाँ, अभी बहुत बेहतर है। साईराम। हम सभी के साईराम, हम सभी के हृदय में वास करने वाले भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। साईराम। आवाज आ रहा है ना? जी भैया, पूरा आ रहा है। यू आर लाउड एंड क्लियर। ओके, साईराम। तो हमारा आज जो बहुत भाग्यशाली दिन है, वैसा मुझे लगता है उड़ीसा से मैं ज्वाइन यूथ के लिए ही बार बार हो रहा हूँ। पहली बार भी मैं आया तो यूथ का ही अपना रिट्रीट था, और आज भी मैं ज्वाइन हो रहा हूँ तो यूथ के प्रोग्राम में ही ज्वाइन हो रहा हूँ। तो स्वामी का कुछ संकेत है इसमें भी, और बहुत खुशी है कि आपने ये समर कोर्स इस तरह से शुरू किया है। वेरी हैप्पी। पहली बात है कि इस 3 डिस्कोर्स में स्वामी ने सबसे पहले एजुकेशन के लिए बताया, क्योंकि वहाँ सब स्टूडेंट ही थे और स्टूडेंट को ही बुलाया था। हमारे आज जो पार्टिसिपेंट है ऑल स्टूडेंट है या हमारा समिति का यूथ है, क्या है? इसमें कुछ यूथ हैं और कुछ ऑफिस बेयरर्स भी हैं सर। ऑफिस बेयरर भी है, लेकिन यूथ के लिए मैं बताऊंगा कि स्वामी ने बताया कि जो एजुकेशन है वो आजकल जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें ज्यादातर, या आजकल की हर चीज में, वर्ल्ड के हर जो माहौल है वर्ल्ड का, जो एटमॉस्फेयर है हमारे इर्द गिर्द, वो सभी का सभी अपरा विद्या में है। मतलब जीवन चलाने के लिए जो जरूरी है उसको ही एजुकेशन में महत्व आया है। हमारे लाइफ में भी हम जो जी रहे हैं
उसमें ज्यादा हमारा ध्यान इस प्रकृति में ही रहता है और प्रकृति में ही हम बड़ा बनना चाहते हैं, प्रकृति में ही हम ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहते हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो हमारा एक अंग है, वो जर्नी के लिए जरूरी है, लेकिन भगवान जो हमारे को विद्या देने के लिए आए, या हमारा जो वैदिक ज्ञान है, या हमारा जो गुरुकुल सिस्टम में जो ज्ञान दिया जाता था, उसमें महत्व हमारे को इसी जन्म में, मानव जन्म में हम और कुछ प्राप्ति करने के लिए आए हैं, इसके लिए बाबा ज्यादा जोर देते हैं। एक विद्या है जो हमारा जीवन सुखी बनाती है, कंफर्टेबल बनाती है, और एक विद्या है कि जो हमारे को डेस्टिनेशन तक लेके जाती है, उस पार ले जाती है जिसके लिए मानव जीवन मिला है। तो हमारा जो इंडियन वैदिक ज्ञान था, जो भी आज भी बहुत सारा खत्म करने के बाद भी बहुत सारा बचा है, वो वैदिक ज्ञान में दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे पास जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वहां पर जो ज्ञान उपलब्ध था उसको जला दिया गया, जिसकी वजह से आज जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसमें था, लेकिन अब हमारे पास नहीं है। और वो जो ज्ञान सब मिला है, वो ज्ञान अंतर मन से मिला है। बहुत सारी ऐसी विद्याएं हमारे पास, जो ज्ञान हमारे पास मिला है, वो उसी यंत्र के माध्यम से ढूंढा हुआ ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान हमारे अंदर ही है, सबके अंदर है, और उसको दूसरी तरीके से उसको उस ज्ञान को ग्रहण किया जाता था। जो भाई नारायण सर बता रहे थे कि हमारा जो ज्ञान है वो एक तो पुस्तक से मस्तक में जाता है, या तो कोई देता है और हम उसको ग्रहण करते हैं। देने वाले का भाव क्या है उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, हम अपने तरीके से उस वर्ड का मीनिंग निकालते हैं। पुस्तक में जो लिखा है उसको भी मस्तक में लेते वक्त उसको हम अपने तरीके से लेते हैं, मतलब हमारा जो अनुभव है उस अनुभव के तौर पर ही उस ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। लेकिन जो अंतर्मन हमको देता है वो रियल ज्ञान है, वो जो परा विद्या है वो अगर हमको मिल जाए तो इधर का ज्ञान होना, दुनिया का ज्ञान होना बहुत इजी है, क्योंकि वो उसके पास दोनों ज्ञान है। क्योंकि वो ज्ञान बाबा भी बताते थे कि ज्ञान वो है, सा विद्या यो मुक्त है, विद्या वो है, ज्ञान वो है जो तुमको मुक्त करती है। हमारा जो अभी ज्ञान है वो ज्ञान इस दुनिया का ज्ञान है, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है, जिससे दुनिया बनी है, वो ज्ञान अगर हमको मिल जाए, इसीलिए दुनिया के ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं, और जो हमारा रियल स्वरूप का ज्ञान है उसको ज्ञान बोलते हैं, और प्रकृति को जो सत्य मानते हैं और उसके अंदर ही रहते हैं उसको अज्ञान बोलते हैं। बोले तो तीन है, ज्ञान है, एक विज्ञान है और एक अज्ञान है। अगर हम गणपति जी की स्टोरी देखेंगे तो जब उनका जन्म पार्वती ने उनको बनाया
तो उनको सिर्फ पार्वती ही मालूम थी, मतलब प्रकृति ही मालूम थी। उनको प्रकृति का आधार जो शिव है वो नहीं मालूम था, इसीलिए वो शिव से युद्ध करते हैं। शिव को ही शिव के घर में आने नहीं देते। हमारे अंदर भी जो गणपति है वो हमारी बुद्धि है। ये बुद्धि को सिर्फ प्रकृति का ही ज्ञान है, इसीलिए वो शिव को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बाबा हमको बताते हैं और हमारा वेद हमको बताता है कि आप कौन है। वेद हमको बताते हैं कि हम ब्रह्मास्मि हैं, और हम बोलते हैं अहम देहास्मि, और उस देह का एक नाम भी देते हैं। जैसे इस देह का नाम मुरली है। अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं मुरली हूं, तो फिर मैं प्रकृति वाला गणपति हूं, पार्वती वाला गणपति हूं, जिसको शिव नहीं मालूम। फिर शिव भगवान ने गणपति का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया, पहले वाला ब्रेन निकाला और शिव गणों ने जो ब्रेन लेके आया था, मतलब शिव वाला ब्रेन बिठाया। ऐसी कथा है। ये हमको ये बताती है हमको भी ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। ब्रेन वॉश करने के लिए हमारा जो साई शिवा है उसने ये समर कोर्स दिया है, वैसे ही ऑल वाहिनीज दिया है, सत्य साई संदेश दिया है, साधना द इनवर्ड पाथ दिया है। ये वैदिक ज्ञान ही है, मतलब ये शास्त्र है। तभी शिव भगवान ने शस्त्र से ब्रेन ट्रांसप्लांट किया था, ऑपरेशन किया था, और अभी बाबा शास्त्र का उपयोग करते हैं और शास्त्र को उपयोग करके हमारा ब्रेन वॉश करते हैं कि तू कौन है। रियल में तू आत्म स्वरूप है, दिव्यात्मा है। और यही ज्ञान कराने के लिए भगवान ने वैदिक ज्ञान को इस तरह से सुलभ कर दिया कि हम इजीली जान सके कि हम रियल में कौन है। इधर की विद्या भी जरूरी है, भौतिक विद्या भी जरूरी है। जर्नी कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन जर्नी कंफर्टेबल करना ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हम रियल में कौन है। अगर हमको कोई 80 साल पहले पूछता कि तुम मुरली हो क्या, तो हम कुछ और थे। आज हमको कोई पूछता है तुम मुरली हो, बाद में और कुछ साल बाद हमको पूछेंगे तो हम मुरली भी नहीं रहेंगे। तो पहले भी मैं था, आज भी मैं हूं और कल भी मैं रहूंगा। ऐसा जो मैं हूं वो दिव्यात्मा है, और उस दिव्यात्मा की अनुभूति करना ये हमारा उद्देश्य है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर चाहिए, वो परिस्थिति भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मनस्थिति में भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और आत्मस्थिति में भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। परिस्थिति ट्रांसफॉर्मेशन होने से हम कुछ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम आ सकते हैं। मनस्थिति ट्रांसफॉर्मेशन होने से हम आनंद दे सकते, सुख दे सकते। लेकिन जब तक आत्मस्थिति नहीं आएगी, हमारा जो अहम है वो जब तक ब्रह्मास्मि नहीं बनेगा, तब तक वो विद्या हमको नहीं मिलेगी जो भगवान हमसे अपेक्षित करते हैं। तो वो विद्या हमको भगवान देने के लिए आए। हमारा जो कल्चर था, भारतीय संस्कृति है, वो मर्यादा वाली संस्कृति है। हमारे को जो भी ज्ञान दिया जाता था गुरुकुल में, वो ज्ञान हमको
जीवन में भी उपयोगी आता था, और जो रियलाइजेशन का पाथ है उसमें भी हमको आगे लेके जाता था। जो स्वामी ने हमको मंत्र दिया है, लव ऑल सर्व ऑल, ये लव ऑल सर्व ऑल अध्यात्म में हमारी उन्नति, लेकिन हमारी जो अभी की स्थिति है उसमें भी ये काम करता है। मतलब दुनिया में भी ये मंत्र चलता है, और हमारे जो परब्रह्म वाली दुनिया है, ज्ञान वाली दुनिया है, विज्ञान वाली, सब जगह में चलता है। मतलब सोशल, फैमिली, पर्सनल और आत्मिक, सभी प्रोग्रेस करने वाली विद्या है। ये विद्या हमको सिखाई जाती थी, क्योंकि अगर भगवान के साथ, अपने निज स्वरूप के साथ अगर कनेक्ट होना है तो हमारा प्रकृति भी वैसा होना चाहिए, हमारा मन भी वैसा होना चाहिए, हमारा शरीर भी उसको साथ देना चाहिए, और आत्मस्थिति भी उसके अंदर स्थिर होना चाहिए। आत्मस्थिति में इसके लिए शरीर मन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे ठीक करना? अब लव ऑल सर्व ऑल अगर होना है तो ये बोर्ड लगाने से नहीं होगा। इसके लिए हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान में भी दो बातें हैं, एक इंफॉर्मेशन ज्ञान है कि एवरीथिंग इज गॉड, और एक एक्सपीरियंस है एवरीथिंग इज गॉड। इसमें फर्क है। नॉलेज वो है जो एक्सपीरियंस है। स्वामी बुकिश नॉलेज बोलते थे, लेकिन सब ज्ञान को वो रस नॉलेज बोलते थे। जो आत्मज्ञान है उसको वो रियल नॉलेज, एवरीथिंग इज गॉड। फिर मैं नहीं रहूंगा, मैं भी गॉड ही बन जाऊंगा, और मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा हो जाएगा। तो उसका बेनिफिट लव होगा। मतलब हम लव ऑल करना चाहते हैं तो हमको भौतिक लव नहीं चलेगा, आत्मिक लव चाहिए। इसमें जब हमारा को ये ज्ञान, ये नॉलेज आना है तो हमको एजुकेशन, वो एजुकेशन मिलना चाहिए जो हमारा चारित्र ठीक रखेगा, क्योंकि अध्यात्म में चरित्र ठीक रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, अपने निज स्वरूप से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमारा संस्कृति में मदर, फादर सब भगवान का रूप माना गया है, और अगर भगवान का वो रूप है तो मुझे उनके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। बाबा ने तो स्पष्ट रूप में कहा है, अगर आप अपने माता पिता को नहीं देख रहे, इफ यू आर नॉट लुक आफ्टरिंग योर मदर एंड फादर, डोंट वेस्ट टाइम विथ मी, विल नॉट गेट एनीथिंग। क्योंकि बाबा हमारे जो मातृ पितृ है वो भी भगवान का रूप है, और वो सबसे पहले भगवान का रूप है। ऐसा हमारा कल्चर है, ऐसा हमारा धर्म है। इसीलिए हम सत्य स्वरूप में अपने पहुंचने के लिए हमारा जो दिनचर्या है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हमारा इस समर कोर्स या बाबा के साथ रहना या मानव जन्म लेना, भारत भूमि में मानवता का जन्म होना, ये जो सारी चीजें हमको प्राप्त हुई है, इसका मेन उद्देश्य हमारे समझ में आना चाहिए कि मुझे मेरे रियल स्वरूप तक लेके जाने वाला ज्ञान
देने के लिए व्यवस्था है। अगर मैं भगवान के पास आके सोसाइटी में नाम कमाता हूं तो वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन के लिए ठीक है, लेकिन जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन हम बाबा के पास, बाबा के चरणों में विलीन होने के लिए काम नहीं आएगा। बाबा के चरणों में विलीन होने के लिए मुझे मेरा उद्देश्य रियलाइजेशन होना चाहिए, और रियलाइजेशन ये होना चाहिए कि सब में मैं हूं और मैं ही सब कुछ हूं। सब कुछ भगवान ही है के अंदर हूं, मेरा भी कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अपने अस्तित्व होना, इसको ही अहंकार बोलते हैं। कोई भी अस्तित्व, नम्रता का अस्तित्व हो, हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। सारा अस्तित्व उसका ही अस्तित्व है। यहाँ पर कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। सारे रोल भगवान ही कर रहे हैं। ये एक बात हमारे को पक्की समझ लेना चाहिए। हम में से कुछ लोगों ने बाबा की अनुभूति की है, बाबा को डायरेक्ट देखा है। पूर्व अवतार में भी कुछ लोगों ने डायरेक्ट भगवान को देखा हुआ है। लेकिन भगवान के सन्मुख जब हमके सामने जब थे, तब हमारा भगवान से संयोग होना बहुत सहज था। तो जब सामने भगवान है तो हमारा संयोग है। लेकिन जब भगवान सामने नहीं है, जब भगवान से हमारा वियोग है, तब हमारे लिए पक्की बात है कि भगवान कण कण में है। भगवान कोई भी ऐसा क्षण नहीं, कोई भी ऐसा कण नहीं जिसमें भगवान नहीं है। यही बात हमको प्रहलाद ने सिखाई है। नरसिंह अवतार में भगवान ने प्रहलाद के लिए त्रिलोक में परिस्थिति बदल दी, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन किया, हिरण्यकश्यपु का राज्य निकाला। अहंकारी हिरण्यकश्यपु है। आज अहंकार की सब में सत्ता है। बड़े बड़े महात्मा भी अहंकार में फंसे हुए हैं। अहम आकार में आ जाता है तो अहंकार है, और अहंकार से आकार हट जाता है तो अहम ब्रह्मास्मि। वेद के जो प्रमुख 4 वाक्य है, उसमें से एक वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरा एक वाक्य है जिसमें बोला जाता है तत्त्वम असि, तू वो है। तीसरा आता है प्रज्ञानाम ब्रह्म, और चौथा आता है अयम आत्मा ब्रह्म। 4 वेदों के 4 महावाक्य है ये। इसमें 2 वाक्य गुरु शिष्य को देता है। गुरु बताता है शिष्य को त्वमसि, तू वो है जो चराचर में रहने वाली आत्मा है, वो तू है, परमात्मा तू है। त्वमसि, तू वो है। फिर शिष्य अनुभव बोलता है, गुरुदेव आपने बताया था तत्त्वमसि, ये सच है। अहम ब्रह्मास्मि, ये उसकी अनुभूति है। मतलब साधना करके जब शिष्य इस अवस्था में आ जाता है कि वो देह से बाहर आता है, वैसे ही अभी जो ये कोविड-19 आया है, ऐसी परिस्थिति परीक्षित के जीवन में आई थी। भागवत वाहिनी में बाबा ने बताया कि परीक्षित को 60वें दिन आके तक्षक डसने वाला है। परीक्षित राजा भयभीत हुए हैं, और वो पूरे राज्य में व्यवस्था कर दी है कि तक्षक राज्य में भी नहीं आ सकता, क्वारंटाइन कर दिया। वो महल पूरा पैक कर दिया, एक चींटी भी अंदर नहीं आ सकती। तो तक्षक तो बहुत बड़ी बात है, एक मच्छर भी अंदर नहीं आ सकता। ऐसी व्यवस्था राजमहल की करने की शुरुआत हो गई। लेकिन परीक्षित को पक्का मालूम था
कि ऋषि ने दिया हुआ श्राप है, तो तक्षक कैसे भी करके आएगा। थे उसी समय भगवत आज का सप्ताह कर रहे, उसी प्रकार का वो सप्ताह था। उसमें पूरा भगवान की निर्मिति, विश्व की निर्मिति, भगवान क्या है, विश्व क्या है, विश्व में कैसे कैसे प्रसंग आए, कैसे कैसे उस प्रसंग से विश्व बाहर आया, इसकी सारी चर्चा उसमें आई। 7 दिन का भागवत सुनने के बाद आखिरी दिन जब सुखदेव मुनि ने राजा को कहा कि आज 7वां दिन है राजा, आज तक्षक आएगा और तुम्हारी मृत्यु है, तब राजा ने कहा गुरुदेव मेरी मृत्यु कहां से होगी, मृत्यु तो परीक्षित की है, वो तो एक दिन होने वाली है, मैं तो आत्मा हूं, मेरी मृत्यु कहां है। जो 7 दिन पहले भयभीत था, उस पहले लास्ट दिन जिस दिन मृत्यु होने वाली, उस दिन वो भयभीत नहीं है, क्योंकि अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। पहले वो परीक्षित था, अभी बोलता है मैं आत्मा हूं। अब हमारी भी अवस्था आनी चाहिए कि मैं अपने आप को उस स्थिति में ले जाऊं कि मैं दिव्यात्मा स्वरूप ला रहा हूं। जब मैं दिव्यात्मा स्वरूप ला रहा है तो मैं सब में हूं, विश्व के हर कण में मैं हूं। अगर मैं विश्व के हर कण में हूं तो मैं सभी से प्यार करूंगा, और अगर मैं सिर्फ मुरली भैया हूं तो फिर मैं सिर्फ मुरली भैया से प्यार करूंगा। फिर मुरली भैया को जो जो चीजें अच्छी लगती है वो करूंगा। सत्य साई सेवा संगठन में आने के बाद भी वही काम करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिससे मेरे को समाधान मिलता है, उतना ही मैं काम करूंगा। भगवान के बताए मार्ग पर, वेदों के बताए मार्ग पर नहीं चलूंगा। भगवान के मार्ग पर चलने के लिए भगवान को समझना बहुत जरूरी है। भगवान को समझने के लिए भगवान के साथ बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कैसे है ये कोई भी बताएगा तो उसका एक्सपीरियंस है, वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहने से हम उसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन भगवान ने स्वयं ने अपने बारे में क्या कहा है, ये अगर जानना है तो हमको भगवान के साथ बैठने के लिए, भगवान ने स्वयं अपने बारे में क्या बताया, ये हम उनके बताए हुए, उनके लिखे हुए बुक्स पढ़ने से हमको पता हो सकता है। लेकिन फिर हमको भगवान के साथ अलग से बैठना पड़ेगा। इसलिए भगवान के साथ बैठने के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई, हमको कैसे बैठना ये भी बताया, और सबसे पहले उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि पहले कुछ भी नहीं था, अकेला मैं ही था, और मैंने ही संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं। यही वेदों में वाक्य भी है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं अनेक बनूं। और हमारे को बाबा इतना इजीली बताते हैं यही बात, आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ टू लव माई सेल्फ। मैंने अपने आप से अपने आप को जुदा किया, अपने आप से प्यार करने के लिए। तो ये दुनिया बनी ही भगवान से है, इसका रॉ मेटेरियल ही भगवान है, और इसको बनाने वाला भी भगवान ही है, कोई और ने ये नहीं बनाया। ये पूरा ब्रह्म, ये पूरा विश्व भगवान ने स्वयं अपने से अब खुद बनाया है। ये अगर बात हमारे समझ में आती है और इसमें हमारी श्रद्धा हो जाती है, ये श्रद्धा होने के लिए बाबा कुछ चमत्कार हमारे साथ करते हैं, हमको दिखाते कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर सेंटेंस में, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारे हर सोच में
मैं ही हूं, मुझे अनुभव करो। अगर हम ये सोच लेके हमारे दिन की शुरुआत करते हैं, उन्होंने शुरू करने के लिए ओम साधना, ओमकार सुप्रभातम दिया, जप और ध्यान दिया। ओमकार में हमारे बॉडी के पूरे 21 बार ओमकार में हमारे पूरे बॉडी के सब सेल भगवान भगवत स्वरूप बन जाते हैं, और सारे सेल, सारी इंद्रिया जब भगवान के स्वरूप बन जाती है, तो फिर हमारे अंदर जो परम पिता परमात्मा का स्वरूप, हमारा जो निज स्वरूप है, उसको हम जगाते हैं। और वो सुप्रभातम भी इतनी सुंदर दी है कि वो अंदर के भगवान को जगाती है, और वो अंदर के भगवान को जगाने के बाद फिर भगवान काम करेंगे। वो सुप्रभातम में एक लाइन आती भी है, उत्तिष्ठ करुणा पूर्ण लोक मंगल सित। फिर अपने हाथ से पूरा दिन लोक मंगलम होगा। जो ध्यान और जप हमको दिया है, जब इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हम हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते रहे। हमारे संस्कृति में ये दिया हुआ है कि हम भगवत नाम स्मरण करें। स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसका हम नाम लेते हैं उसका हमको सहज स्मरण होता है। अगर हम आम बोलते हैं तो हमको आम याद आता है। जब हम केला बोलते हैं तो हमको केला याद आता है। वो केला की टेस्ट भी याद आती है, उसका आकार भी याद आता है, उसके फायदे भी याद आते हैं। आम खाने से उसके क्या फायदे ये भी याद आता है। एक आम वर्ड पूरी उसकी जितनी क्वालिटी उस सबको याद कराता है। वैसे भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में भगवान के बारे में जो जो नॉलेज है वो सब प्रकट हो जाता है। ये पासवर्ड की तरह काम करता है। वो पासवर्ड डालने से वो वेबसाइट ओपन होती है। ओम श्री साईराम बोलने से पूरी भगवान की जो ज्ञान है वो हमारे वो वेबसाइट ओपन हो जाती है ब्रेन में, और फिर हमारा ब्रेन उसी तरह सोच रखने लग जाता है। इसलिए नामस्मरण हमारे अंदर बहुत बड़ा काम करता है। प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि जब भी हम भगवान को याद करें तो उस याद में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। जब उसको याद करते हैं तो दुनिया सिर्फ वही है, ये याद आना चाहिए। जब भी हम भगवान की तस्वीर को देखते हैं, जो हमारा कल्चर है कि हमारे मंदिर हमारा कल्चर है, मूर्त हमारा कल्चर है। जब उस मूर्त को हम देखते हैं, भगवान के विग्रह को देखते हैं, तो वो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि उसको देखने के बाद हमको भगवान की याद आती है। और भगवान की याद का मतलब है सब कुछ तू है, और सब कुछ तू है ये जब मुझे याद आता है तब मैं खत्म हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी वही हूँ। क्योंकि हमारी अभी हालत सीता जैसी है जो रावण के कब्जे में है। हमारा जो माइंड है उसके 4 पार्ट है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये राम लक्ष्मण सीता और हनुमान ही है। इसको मूर्ति के रूप में भी दिखाया गया है हमारे सामने। हमारा जो मन है वो हनुमान की तरह होना चाहिए। आज जो हमारा मन है वो बंदर की तरह है। इसीलिए स्वामी बोलते भी है कि मंकी माइंड। आप सबको शायद ये स्टोरी मालूम होगी कि 72 में समर कोर्स हुआ था, उसी व्हाइट फील्ड में एक दिन स्वामी ने एक छोटा मीटिंग में
सेल्फ सेंसेस कंट्रोल के बारे में बोला। हमारा सेंसेस हमारा कंट्रोल में होना चाहिए, ऐसे स्वामी बोल रहे थे। और दूसरे दिन मॉर्निंग स्वामी अपने रूम से जब नीचे आए, कई वृंदावन में नीचे आए, तो रोज स्वामी के लिए कॉफी रखी जाती। जब स्वामी नीचे आते थे तो कॉफी रेडी रहती थी। उस दिन स्वामी नीचे आए तो कॉफी रेडी नहीं थी। तो स्वामी ने जो लड़का था उसको बोला, वेयर इज माई कॉफी? तो उसने कहा, आई विल ब्रिंग इन 2 मिनट स्वामी। मतलब कॉफी रेडी नहीं थी। तो स्वामी एकदम गुस्सा हो गए, लेकिन वो लड़का अंदर कॉफी लेने के लिए चला गया। और जब वो कॉफी बना रहा था, तब बनाते बनाते उसने वो थॉट आया कि कल ये इन्होंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया भगवान ने हमको कि सेंसेस में कंट्रोल होना चाहिए। अब कॉफी को 2 मिनट लेट हो गए तो गुस्सा हो गए। ऐसा उसको थॉट आया। जब वो कॉफी लेके बाहर आया तब तो स्वामी तई वृंदावन का गेट खोलकर बाहर आ गए। जब स्वामी स्टेप के पास आया तो सामने गार्डन में बहुत सारे मंकी थे। उन सब मंकी को देख के स्वामी ने हाथ घुमाया। जैसे हाथ स्वामी ने घुमाया, वैसे ही वो सारे मंकी जो गार्डन में थे वो एक लाइन खड़ा करके खड़े हो गए। वो एक लाइन में होने के बाद स्वामी ने जब हाथ घुमा के खोला तो उसमें ग्राउंड नट्स था, मूंगफली था। स्वामी ने वो बंदरों के सामने अपना हाथ किया, मूंगफली वाला हाथ आगे करते ही एक बंदर आगे आया, एक मूंगफली लिया, चला गया। दूसरा लाइन में जो दूसरा था उसने एक मूंगफली लिया, तीसरे वाले ने तीसरा लिया, चौथे वाले ने चौथा लिया। लास्ट बंदर ने स्वामी के हाथ की लास्ट मूंगफली को लिया और सब चले गए। बहुत सारे लोग इसको देख रहे थे। ट्रस्टी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट प्रेसिडेंट, सब लोग इसको देख रहे थे। बहुत सारे ओल्ड क्लोज डिवोटी भी उसको देख रहे थे। जो लड़का कॉफी लेके आ गया था वो भी देख रहा था और सबको बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। स्वामी का वो लीला देख के आनंद हुआ। फिर सब लोगों को देख के स्वामी ने कहा, आई कैन कंट्रोल monkey, but I cannot control monkey mind. फिर कहा mad monkey mind, not only mad monkey mind, he's drunk, वो शराब पिया है। वो सिर्फ शराब पिया नहीं है, उसको स्कॉर्पियो ने काटा है, बिच्छू ने उसको काटा है। इतना पागल मन है। और उस लड़के के तरफ देखा, वो समझ गया कि मैं जो कॉफी बनाते वक्त सोच रहा था वो भी भगवान जानते हैं। हमारा मन पक्का हनुमान की तरह होना चाहिए। ऑलवेज ये माइंड मंकी है, लेकिन अगर ये भगवान के साथ कनेक्ट होते रहता है हनुमान की तरह, परमानेंट कनेक्शन, ओनली फॉर गॉड, जैसा गोपी भी है ओनली फॉर कृष्णा, वैसा हमारा भी होना चाहिए, ओनली फॉर स्वामी। हम किसी के साथ भी कनेक्ट होएंगे, वो हमारा माता हो सकता है, पिता हो सकता है, वो हमारा गुरु हो सकता है, वो हमारा बंधु हो सकता है, वो हमारा सखा हो सकता है, वो हमारा वाइफ हो सकता है, वो हमारा चाइल्ड हो सकता है, वो हमारा फ्रेंड हो सकता है, वो हमारा कुछ भी, कोई किसी भी तरह से हमको कनेक्ट होया रहेगा। लेकिन हम उसके अंदर अपने उस भगवान के स्वरूप को ही देखेंगे। रूप कौन सा भी हो, स्वरूप भगवान का है। ये हमारा माइंड बन गया तो हमारा माइंड भी हनुमान है। बुद्धि है, बुद्धि है, उससे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और वो विवेक, हमारी बुद्धि लक्ष्मण की तरह होनी चाहिए।
इसलिए हमारे अंदर जो मन है वो हनुमान की तरह होना चाहिए और बुद्धि लक्ष्मण की तरह होनी चाहिए। लक्ष्मण की बुद्धि क्या है? उसके सामने राज्य है, वाइफ का सुख है, राज्य सुख है, वो सब राम के लिए छोड़ के वन में जाने को तैयार है। भगवान के लिए कितने भी कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन अपना मन भगवान में से नहीं हटता है। लक्ष्य में जिसका मन लगा है वही लक्ष्मण है। लक्ष्य में मन लक्ष्मण है। इसलिए हमारा कभी भी मन लक्ष्य से नहीं हटता है तो हमारा बुद्धि लक्ष्मण है। वैसे ही सीता चित्त है। हमारा जो कॉन्शियस है वो सीता की तरह होना चाहिए। इसीलिए हमारे सुप्रभातम में आया है, सीता सती सम विशुद्ध रुदम्बु जाता। सीता और सती की तरह हमारा मन होना चाहिए, हमारा चित्त होना चाहिए, हमारा कॉन्शियस होना चाहिए। पतिव्रता की तरह हमारा कॉन्शियस होना चाहिए, ऑलवेज विद भगवान। हमारा चित्त में भगवान बस जाना चाहिए। सीता मैया को एक बार मोह हुआ, हिरण का, डियर का मोह हुआ। वो हिरण के मोह की वजह से उसको 1 साल के लिए अहंकार के कब्जे में रहना पड़ा। हमारा भी कॉन्शियस अभी अहंकार के कब्जे में है, उसको वहां से हटाना है। अगर अहंकार के कब्जे में, अहंकार के पास बहुत कुछ सुख है लेकिन उसका धर्म है। अहंकार का जन्म सिद्ध हक है दुखी होना और दुखी करना। आप देखेंगे जितना बड़ा अहंकारी होता है उतना ज्यादा दुख देता है और ज्यादा दुखी भी होता है। अहंकार कभी भी सुख नहीं दे सकता। इसलिए रावण दुखी भी है और सीता को भी दुखी करता है। लेकिन उस दुख के समय सीता ने राम के नाम का आश्रय किया था और ऐसा राम नाम लेते समय रावण उसको बार बार मनाने की कोशिश करता है कि तू मेरी पत्नी बन जा, मेरे महल में चल, लेकिन सीता नहीं जाती। सर्व सुखों का त्याग करके वो राम का नाम ले रही है। और मंदोदरी को जब पता चलता है तो मंदोदरी रावण को बोलती है कि मैं सीता से बात करती हूँ। मंदोदरी खुद आती है और सीता को कहती है, सीता तू राम का नाम यहाँ जप कर रही है, राम तो समुद्र के उस पार है, तेरी आवाज कैसे जाएगी? तो सीता ने कहा कि राम सर्वव्यापी है, हमारे स्वामी भी सर्वव्यापी है, हमेशा है, वो राम भी हमेशा सर्वव्यापी है। तो फिर मंदोदरी ने पूछा सीता को कि फिर रावण कौन है? अगर राम सर्वव्यापी है तो रावण कौन है? तब सीता ने कहा कि रावण भी राम ही है। तो मंदोदरी ने कहा फिर सीता वो भी राम है और ये भी राम है, तो फिर आपको रावण रूपी राम के पास चलने में क्या प्रॉब्लम है? उसके साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? तो सीता ने कहा जब मैं राम को सर्वव्यापी मानती हूं और उसका जप करती हूं तब राम, मैं सीता नहीं रहती, मैं भी राम ही रहती हूँ। जब सब भगवान है तो मैं भी नहीं हूं, मैं भी उसका ही रूप हूं। अपना अस्तित्व मिट गया और सिर्फ भगवान का अस्तित्व रह गया। ऐसा नामस्मरण सीता करती थी। ऐसा हमारा चित्त होना चाहिए कि जिसमें अपना कोई अस्तित्व नहीं। और हमारा जो अहंकार है वो आज कहता है कि मैं नारायण सर हूं, वो कहता है मैं मुरली हूं, वही कहता है मैं राजा हूं, और वही कहता है मैं चिन्मय हूं। ऐसे हमारे अपना अपना रूप के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारा जो अहम है उस रूप के साथ, उस मन के साथ जुड़ा है। उसको हमको, उस अहंकार को बदली करना है, उसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है और हमको सोच बनानी है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम नॉट देहास्मि, अहम नॉट आकारास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और ये हमारे प्रज्ञा में आ जाना चाहिए। प्रज्ञा नाम ब्रह्म है। गुरु बताते अयम आत्मा ब्रह्म, गुरु बताते प्रज्ञा नाम ब्रह्म, और शिष्य कहता है अयम आत्मा ब्रह्म। मैं
मेरी आत्मा ब्रह्म है, मैं ब्रह्म, आत्म रूप में मैं ब्रह्म हूं। और इसके लिए हमको रोज थोड़ी देर उस स्थिति में जाना चाहिए, अपने निज स्वरूप में। रोज सुबह उठकर अपने निज स्वरूप में जाना चाहिए। अगर हम अपने निज स्वरूप में जाते हैं तो उस समय दुनिया नहीं है, सिर्फ परब्रह्म है। उस रूप में हम भगवान को देखेंगे जिस रूप में आज भगवान हर कण में है। कण कण में भगवान नहीं है, हर कण ही भगवान है। जैसे स्टील से बनी हुई कटोरी, स्टील से बनी हुई लोटा, स्टील से बना हुआ ग्लास, स्टील से बना हुआ चमचा, स्टील से बना हुआ थाली, स्टील से बना हुआ डब्बा, ये सारा स्टील से बना है। इसलिए आकार कोई भी हो, हर कुछ स्टील ही है। जब हम ब्रह्म बन जाते हैं तो हर आकार हमारे लिए ब्रह्म है। ऐसा सोचने से हमारा जो अलग अस्तित्व है, हमारा जो अहंकार है, वो बदली हो जाएगा, वो राम जैसे हो जाएगा। ये हमारा अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बदली करने के लिए हमारा 9 कोड ऑफ कंडक्ट है। हमारी सुबह की साधना, एकांत साधना, पर्सनल साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत जन्मों से अलग अवस्था में जी रहे हैं, अलग स्थिति में जी रहे हैं, मन स्थिति, देह स्थिति में जी रहे हैं। उसको आत्म स्थिति बनाना है तो रोज सुबह भगवान के साथ एक हो जाना पड़ेगा। अगर ये साधना मेरी पर्सनल साधना हो गई, उसके लिए जप ध्यान है। लेकिन कौन सी भी साधना करे, अष्टोत्तर नामावली करे, जप ध्यान करे, श्लोका बोले, वेदा बोले, इसमें हमारा अस्तित्व मिट जाना चाहिए और सिर्फ भगवान का अस्तित्व रहना चाहिए। पूरी दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि स्मरण शब्द में मरण है, समरण है। समरण का मतलब है सबका मरण, स मतलब सबका मरण, ओनली भगवान का स्मरण। भगवान की याद में सिर्फ भगवान ही सब कुछ है, ये याद आना चाहिए। भगवान की तस्वीर को देखकर भी यह याद आना चाहिए। भगवान का बुक पढ़ते वक्त तो भगवान ही याद करवाएंगे, और सत्संग में भी वही याद आना चाहिए। घर की पर्सनल साधना में भी वही यही याद आना चाहिए, और जब फैमिली साधना करेंगे तो उसमें भी याद आना चाहिए। फैमिली साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बहुत सारा समय फैमिली में जाता है। वहां भी हमारी यही सोच होना चाहिए, ये फैमिली नहीं है, ये बाबा का रूप है। मेरी हर घर की चीज मेरे बाबा है, और मेरे फैमिली भी बाबा का ही स्वरूप है। ये सोच बनाने से ऑटोमेटिक डिटैचमेंट हो जाएगा। अभी हमारे को अपने शरीर का भी मोह है, उसका हम बहुत ध्यान रखते हैं। उससे ज्यादा ध्यान हम अपना मन का रखते हैं। मन के लिए बाबा ने बहुत सुंदर बताया है। मन की जो ये व्याख्या स्वामी ने की है, वो किसी ने नहीं की इस दुनिया में। मन एक कपड़ा है, कपड़े में धागे होते हैं और मन में डिजायर होती है। धागा कपास से बनता है और मन की डिजायर थॉट से बनती है, और थॉट्स अंदर आने के लिए हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वो काम करती है। ज्ञानेंद्रिय से थॉट अंदर आते हैं, मन की डिजायर को डेवलप करते हैं, नई डिजायर तैयार करते भी हैं, और ऐसे हमारा मन तैयार होता है। इसलिए अपने इंद्रियों को भगवान में लगाना, ताकि आंख भगवान को देखे, कान भगवान को सुने। वर्ड कोई भी हो, लेकिन सुनेंगे भगवान को ही। भगवान की श्वास ले हम, हर श्वास में सोहम की याद आए हम। हर श्वास लेते वक्त सो और छोड़ते वक्त अहम आवाज आती है। ये अजपा जप ही चालू है भगवान का।
लेकिन हम उसके साथ नहीं है, उसको भी याद करना है। ये सारी साधनाएं हमारे को काम करती है, इसलिए फैमिली भजन दिया है, फैमिली नारायण सेवा दी है। ये सब करते करते हम उसके साथ एक हो जाएंगे। इसीलिए मुरली भैया की साधना में से मुरली भैया को एक वर्ड मिला कि सुबह हम योगी बने, योगी की तरह एक हो जाए भगवान के साथ। योगी कौन है? हमारे बाल विकास का श्लोक समझाता है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम। ओमकार मतलब दुनिया का सबसे विशाल, विश्व के हर कण में जो प्रणवनाद की गूंज है उसका ही नाम ओम है। और बिंदु मतलब पूरा विश्व, दोनों को संयुक्त, अलग अलग नहीं। प्रकृति और पुरुष को अलग अलग नहीं। ये जो पूरी प्रकृति बनी है वो भगवान से बनी है। वो आकार जो बना है वो भगवान से बना है। जैसे स्टील आकार लेता है तो आकार का अलग अलग नाम है, लेकिन है सब स्टील। वैसे ही ये दुनिया ने अलग अलग भगवान ने आकार लिए हैं, इसलिए अलग अलग नाम है, लेकिन है सब भगवान का ही रूप। इसलिए भगवान उस श्लोक में बताते हैं, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन। हमेशा योगी लोग इसका ध्यान रखते हैं कि सब कुछ सबसे छोटे में छोटा भी तू है और सबसे विशाल में विशाल भी तू है। ऐसे सुबह की हमारी साधना होगी, उसको हमने योगी कहा है। और सुबह की साधना से जब हम उठेंगे तो हमारा दूसरा रोल होगा उपयोगी। इस दुनिया में सबसे जो हमारा कल्चर ने, हमारे भारतीय संस्कृति ने, हमारे वैदिक संस्कृति ने जो हमको मंत्र दिया है कि त्याग ही सब कुछ है। त्याग में शांति है, त्यागात शांति निरंतर हमेशा है। और भगवान के साथ जो मिलना है ना, वो त्याग के बिना नहीं होगा, क्योंकि भगवान को भोग नहीं, त्याग प्रिय है। इसलिए सुबह दिन भर हम उपयोगी बने, किसी के लिए जिए। हमारा शरीर भी परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये हमारी वैदिक संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। हम उपयोगी बने। हम फैमिली में है तो फैमिली के काम आएंगे, अगर हम ऑफिस में जाते तो ऑफिस के काम आएंगे, अगर हम बिजनेस करते तो कस्टमर के काम आएंगे। हम कहीं भी रहे, हम किसी न किसी के उपयोगी रहेंगे। आज उल्टा है, हम सबका उपयोग करना चाहते हैं, जो भी आता है उसका हम उपयोग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सारे ऑफिस बेरर को हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि हाँ, पहले आप सेवक हो, आप सबके लिए हेल्पफुल बनो। समिति कन्वीनर, समिति में जो सेवा दल है उनके उपयोगी बने, सेवा दल डीओटी के उपयोगी बने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समिति कन्वीनर के काम आए, स्टेट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर स्टेट ऑफिस बेरर के काम आए, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट के काम आए, नेशनल टीम सबके काम आए। ऑर्गेनाइजेशन में भी हम किसी के काम आए। मैं कैसा किसका उपयोग करूं, ये लीडर क्वालिटी नहीं है। मैं किसके क्या आऊं, ये उपयोगी है। तो हम दूसरा मंत्र हमारे जीवन में लेंगे और वो है, हम उपयोगी बने। और तीसरा वर्ड ओडिशा से मिला है, जो जिसका मीनिंग मैं बताता था, लेकिन उसका वर्ड मुझे नारायण सर ने दिया कि योगी सुबह दिन भर उपयोगी और रात को जब सोने जाते हैं तब त्यागी बन जाइए। जितने अपने काम हैं, सारे काम पूर्ण होने के बाद जब हम लास्ट में अब सोने जा रहे हैं, तो उस समय हम किसी गद्दे पर नहीं सोएंगे,
किसी कॉट पर नहीं सोएंगे, हम भगवान के साथ सोएंगे, भगवान के साथ एक हो जाएंगे। ऐसा त्याग हो जाना चाहिए अपना कि जैसे मृत्यु समय में हम सब कुछ त्याग देते हैं। साई राम। सैरम भैया, साई राम। सैरम भैया, हाँ, अभी टाइम अपना कितना हो गया? अभी और 20 मिनट बाकी है भैया। ओके ओके, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं ना? जी प्लीज भैया, प्लीज। हाँ, तो हमारे को लास्ट जो हमारा सोना जो है वो किस तरह होना चाहिए? जैसे मृत्यु के समय में हम सब कुछ त्याग देते हैं, वैसे हमारी रात की नींद होना चाहिए। रात को सोते समय पर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना और उसकी याद में सो जाना, नामस्मरण करते हुए सो जाना। अगर ऐसे हम सो जाते हैं तो हमारी नींद भी साधना बन जाएगी और पावरफुल साधना बनेगी। अच्छी नींद भी होती है और समाधि का आनंद देती है और समाधि की साधना हमसे करवाती है। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा मन जो है, ये सारा जो हमारा सुख दुख, मान अपमान, ये सारी जो चीजें हैं, ये मन का ही खेल है। बॉडी से तो हम इस जन्म में अटैच हुए, लेकिन मन के साथ हम जन्म जन्म से अटैच है। इसलिए बहुत जरूरी है ये जो ह्यूमन माइंड है, इस ह्यूमन माइंड को हनुमान बनाना है। इस मंकी माइंड को बजरंग बली बनाना है, मारुति बनाना है। ऐसा अगर इसको करना है तो डिटैचमेंट आनी चाहिए। इसीलिए इसको सहायक एक मंत्र भगवान ने हमको दिया है कि सीलिंग ऑन डिजायर करो। जब जो डिजायर आ जाए तब वो नहीं करो, उसको को थोड़ी देर बाद करेंगे। ऐसा एक पॉज अंदर लेने की आदत डालनी पड़ेगी। ये पॉज डालने की आदत को हमारे संस्कृति में प्रत्याहार कहा है। दूसरा एक इसका तरीका है कि हम इसको प्राणायाम से भी ठीक कर सकते हैं। अगर प्राणायाम करते हैं, दीर्घ श्वास लेते हैं, उसको रोकते हैं और बाद में उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं, ये जो प्राणायाम भगवान ने हमको सिखाया है, ये हमारा वैदिक है, ये हमारी वेदों की संस्कृति है। इससे मन कंट्रोल होता है। और हमारे जो प्रशांति भजन है, ये सहज प्राणायाम है। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी ने इसका रिसर्च करके बताया है। वही भजन वो भी गा रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, बाबा से ही सीखा उन्होंने कि ये सहज प्राणायाम है। इसलिए प्रशांति भजन, कोई नया आदमी आके भी बैठता है तो उसको अशांति का अनुभव होता है। भजन में भगवान के साथ खो जाना, ऐसा मीरा की तरह भजन गाना है। उस भाव से गाना कि मेरे प्रभु है सब कुछ, सब कुछ मेरे प्रभु है, सब कुछ मेरे प्रभु है। तो जो जो भजन होगा, उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी, वो आपको तो आनंद देगी, आपको तो ट्रांसफॉर्म करेगी, लेकिन उस भजन में जितने आए उनको भी ट्रांसफॉर्म करेगी। उसके वाइब्रेशन जगत में जाएंगे, वो तो उस जगत को भी ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। इसलिए हमारे जो 9 कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें ये भी बात है। तो सुंदर अनुभव करने के लिए सत्यम
कि बहुत जरूरी है। और सत्यम एक ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। सत्य ज्ञान है। क्या ज्ञान है? अनंतम ब्रह्मा। ब्रह्म अनंत है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। पहले भी कुछ नहीं था, बाद मध्य में भी कुछ नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं। यह मोह की वजह से हमको ये भ्रम हो गया कि मैं अलग हूं और दुनिया अलग है। इस मोह को, इस भ्रम को अगर हटाना है तो बाबा को पूछा था कि स्वामी कैसे लाना। तो बाबा ने कहा कि डीप अटैचमेंट विथ गॉड इज डिटैचमेंट। शायद दुनिया में किसी ने भी इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इतना आसान डिटैचमेंट नहीं सिखाया। और हम देखेंगे कि डीप अटैचमेंट हनुमान जी की थी तो वो डिटैच थे दुनिया से। मीरा की डीप अटैचमेंट कृष्ण के साथ थी तो डिटैच थी दुनिया से। प्रहलाद की अटैचमेंट नारायण से थी तो डिटैच थे सारी दुनिया से। कोई भय नहीं, सब कुछ नारायण है और आपके स्टेट प्रेसिडेंट ही नारायण है, आपको तो कुछ चिंता करने का आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सोच बनानी पड़ेगी हमको। पहले भी आपके स्टेट प्रेसिडेंट जगन्नाथ, और हर जगह में जितनी बार उड़ीसा में मैं भजन में गया हूँ, एक भजन पक्का है, साई जगन्नाथा साई जगन्नाथ। यही सत्य है। हमारी आरती की शुरुआत भी ऐसी है, ओम जय जगदीश हरे। हमारा जो स्वामी है वो जगदीश है, पूरा जगत है और कोई नहीं है दुनिया में हमारे लिए। आरती की शुरुआत करते ही शुरू हो जाना चाहिए ओम। ओम का मतलब है विश्व के हर कण में रहने वाला जगदीश है मेरा स्वामी, मेरे सत्य साई जगदीश है और उसको मैं शरण जाता हूँ। यही हमारी शुरुआत है आरती की। आरती का अंत जो है मंगल आरती अंध को। इस आरती में क्या डालेंगे? इस आरती में हम अपने आप को डाल देंगे, अपने आप को इस आरती में मिटा देंगे हम, और फिर लास्ट में नारायण नारायण आता है। तो नारायण बोलते हैं, फर्स्ट स्टांजा जो नारायण का है वो हमारे सामने जो षणमुख भगवान का स्वरूप हमने रखा है, जिस रूप में भगवान कुर्सी पर विराजे हैं, चित्र में विराजे हैं, उसको हम आरती करते हैं। सेकंड स्टांजा नारायण का लेते वक्त हम पूरी दुनिया को आरती उतारते हैं कि सब कुछ नारायण है, इसलिए प्रदक्षिणा करते हैं, अपने तरफ प्रदक्षिणा करते हैं, पूरे दुनिया के नारायण के रूप में आरती देते हैं। और लास्ट का ट्रांजा में खुद आरती लेते हैं, मतलब अपने आप को भी नारायण को समर्पित कर देते हैं। हमारा अस्तित्व नहीं है, सिर्फ उसका अस्तित्व है। यही हमारा कल्चर है। ये त्याग जब तक, आखिरी त्याग जब तक नहीं होगा कि मैं भी नहीं हूं, मैं भी तू हूं, इस मोह को नष्ट करने के लिए जो डिटैचमेंट की आवश्यकता है, वो डिटैचमेंट भगवान के साथ अटैच, ऊपर ऊपर नहीं, डीप अटैचमेंट विद गॉड कि सब कुछ तू है और सब कुछ तू है। तो वाइफ से डिटैच होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तू है, जहां मैं हूं वहां तू है, जहां तू है वही मैं हूं, जहां तू नहीं वहां मैं नहीं, और जहां मैं नहीं वहां तू भी नहीं। जहां तू मैं नहीं है, सब एक ही है। इसलिए शिरडी बाबा हमारे को सिखाते थे सबका मालिक एक। ये जो पूरी दुनिया बनी है ना, उस मालिक से बनी है। इस भाव को परमानेंट करने के लिए हमको रात और दिन इसी ख्याल में रहना पड़ेगा। और अगर इस ख्याल में रहना है तो सुबह योगी, दिन भर उपयोगी, और रात को बहुत मस्त साधना है कि जो अच्छी नींद भी देती है और साधना भी है। ये दोनों का संगम करने वाली जो नींद है, इसको योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा में, निद्रा आने के पहले मैं योग निद्रा में चला जाता हूँ। निद्रा बाद में आती है, लेकिन योग निद्रा में मैं पहले ही चला जाता हूँ। मैं सोच से योग निद्रा में जाता हूँ कि सब कुछ तू है। तो सोया कौन कहां पर है? तू तेरे में ही सोया है और तू तेरे को ही सुबह फिर उठाएगा।
आप देखना इतना आनंद आता है, इतनी अनुभूति आती है इस निद्रा में। ये निद्रा शिव भगवान करते हैं, यही निद्रा बाबा भी करते थे, और सारे जितने योगी लोग हैं वो इसी निद्रा में रहते हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, सब में भगवान देखने की जो हमारी व्यवस्था है वो हमारे वेदों में है। आपका नेक्स्ट टॉपिक मेरे हिसाब से उपनिषद है। सुन रहे हो? जी भैया, साईं राम। साईराम, सुन रहे हैं भैया, सुन रहे हैं भैया। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उपनिषद ही है ना? जी भैया। हाँ, तो उसमें और आप डिटेल में अनुभव करेंगे। उपनिषद वेदों का ही क्वेश्चन आंसर रूप है। जो गुरु शिष्य संवाद है, गीता भी वही है। अर्जुन ने क्वेश्चन किए और भगवान ने जवाब दिया है। ये वेदों का सारी है। और हमारी जो वैदिक संस्कृति है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में लाई है कि सुबह उठो तो भगवान को याद करो, उसके बाद आप भगवान की अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाओ, रोज उसका पूजा करो। पूजा के माध्यम से हम उससे जुड़ते हैं। और पूजा के लिए जो उन्होंने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैदिक संस्कृति ने पूजा के लिए जो विग्रह चुने, वो जड़ बनाए, जड़ चीज के बनाए, पत्थर के बनाए, धातु के बनाए, लकड़ी के बनाए। जो जड़ चीज है उसमें सुबह सुबह हमको भगवान देखने को सिखाया। कितनी 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 सोच है कि सबसे जड़ में एक बार तू देख ले कि यहाँ वही चैतन्य है। और हमारे जगन्नाथ के मंदिर में वही चैतन्य महाप्रभु वैसे तो जड़ मूर्ति है, लेकिन उसमें सदैव विलीन हुए। द्वारका के मंदिर में भगवान की मूर्ति ही थी, विग्रह था, लेकिन वो विग्रह जड़ था, लेकिन वो उसमें मीरा ने चैतन्य बनाया था, तो वो चैतन्य में विलीन हो गई मीरा, सदैव विलीन हो गई थी। हमारे को सुबह की पूजा में ये वैदिक संस्कृति सिखाती है कि तू जड़ में भगवान को देख। उसके बाद हमको तुलसी, पीपल, पेड़ पौधे को पानी देने के लिए भी हमारे संस्कृति ने उसके बाद सिखाया। जो आपने जल अभिषेक में यूज किया है उसको पेड़ पौधों में डालने को सिखाया, तो उसमें भी भगवान देखने को सिखाया। बाद में पशु पक्षी को खाना देने को सिखाया। पहली रोटी गाय की बनती थी और आखिरी रोटी कुत्ते की बनती थी। कौवे को खाना खिलाया जाता था, चिड़ियों को दाना दिया जाता था, चींटियों को शक्कर डाली जाती थी। यही हमारा यज्ञ होता था, भूत दया यज्ञ। मतलब पशु पक्षी में भी भगवान है। और खाना माँ बनाती थी, और खाना बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को देती थी, गॉड को देती थी, जी फॉर गॉड, फिर ओ फॉर अदर्स, सबको खिलाती थी, और लास्ट में डी, आई, खुद को खिलाती थी। इसलिए वो मातृदेवो भव कहा है उसको। हम भी ऐसा ही करें। जब भी हमको कुछ प्राप्ति करे हम, तो पहले भगवान को अर्पित करें, फिर अपने से जुड़े हुए अदर्स को अर्पित करें, और फिर अपने लिए सोचे। यही हमारी धारणा है। तो हमारे को सबसे जड़ में भगवान को देखने को सिखाया, पेड़ पौधों में भगवान को देखने को सिखाया, और उसके बाद लास्ट में अपने अंदर भी भगवान को देखने को सिखाया। सब कुछ तू है। जब सब में भगवान देखेगे तो सबसे प्यार हो जाएगा, और सब में भगवान देखते देखते आप भी स्वयं उसका ही स्वरूप है, ये आपको अनुभूति हो जाएगी। ये रास्ता है, ये मार्ग है। और सत्य साई सेवा संगठन में माहौल है। इन विचारों को लेकर सब ऑफिस बेरर काम करे। हर सेवा दल
को इसकी जानकारी हो और वो जानकारी फिर वो कृति में ला। इच्छा शक्ति जब क्रिया शक्ति में आती है तो ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है। इच्छा शक्ति अगर क्रिया में नहीं आई तो खत्म हो जाता है। कौन सा भी ज्ञान अगर एक्शन में नहीं आया तो खत्म हो जाता है। तो उसको एक्शन में लाने के लिए भगवान ने हमको सेवा का मार्ग दिया है। सेवा के मार्ग के दो फायदे हैं। एक तो हमारा जो पूर्व कर्म है उसको वो विध्वंस करता है, नया कर्म निर्माण नहीं करता है और भगवान से जोड़ता है। लेकिन सेवा हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। हम उसकी रिहर्सल ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, समाज में करेंगे। हमारा लक्ष्य समाज नहीं है, हमारा लक्ष्य है हमारा एटीट्यूड, अपने लिए जीने का जो एटीट्यूड है उसको बदल के सेवा का भाव उसमें आ जाना चाहिए। सेल्फिशनेस जाके लवलेसनेस आना चाहिए। इसका रिहर्सल हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। नाम कमाना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम करना ये हमारा टारगेट नहीं है। सब लोगों में हमारा अच्छा रेपुटेशन बने ये अच्छी बात है, लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है। ये तो साइड बाय तो होगा। पॉपुलर होना ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा भगवान के साथ विलीन होना टारगेट है। पॉपुलर हो जाएंगे तो फिर दुनिया में खो जाएंगे हम। जो दुनिया एक दिन मिटने वाली है, जिसका हम नाम करना चाहते हैं वो नाम एक दिन मिट जाएगा। जिस चेहरे को हम सबको पहचान करवाना चाहते हैं, जिस चेहरे की, वो चेहरा भी एक दिन मिट जाएगा। वो चेहरा बदल जाएगा, क्योंकि ये चेहरा, ये शरीर जाता है, दूसरा मिलता है। ये भी शरीर बचपन में कुछ था, जवानी में कुछ है, बुढ़ापे में कुछ और रहेगा। इसलिए इसके पीछे नहीं लगना है। मरने के बाद अपना नाम रखने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद हमारे स्टैचू लगा के हमारा नाम भी लोग लेंगे तो वो देखने को, उसको अनुभव करने को हम नहीं है। हम तो भगवान के साथ विलीन होने के लिए आए। जो हम परमानेंट, हमारा जो स्वरूप है, परमानेंट स्वरूप है, उसका अनुभव करने के लिए, उसका रियलाइजेशन करने के लिए सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में है। और उसके लिए अगर हम काम करते हैं तो हमारे इसी जीवन में भगवान के साथ जो भगवान देने के लिए आए वो हम लेंगे, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है, उड़ीसा के लिए मैं खास मेरा प्यार है, क्योंकि जो प्यार मैंने उड़ीसा में भगवान के लिए देखा है, जिसकी बहुत जरूरत है। के प्यार के बिना का वैराग्य का निर्माण ही नहीं हो सकता। डीप अटैचमेंट विद गॉड इज डिटैचमेंट। वैराग्य आने के लिए भक्ति की बहुत बहुत जरूरत है, जो मैंने अनुभव की है उड़ीसा में। तो उड़ीसा के लिए मेरे खास प्यार है कि उनके भक्ति को, और वो भक्ति ने एक्शन में भी देखी है। तो ये भक्ति वैराग्य को निर्माण करती है अपने अंदर, ज्ञान को निर्माण करती है। ज्ञान की जननी है भगवान। जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान का ज्ञान होगा कि सब कुछ तू है। फिर त्याग कहां से आया? तू ही तेरे लिए कर रहा है, तो त्याग कहां से आया? ये त्याग का भी त्याग है। मैंने कुछ त्याग किया है, वो मुझे अगर याद रह गया तो सही त्याग नहीं है। त्याग का भी त्याग हो जाना चाहिए।
और ये भक्ति करती है। सहज सहज कर्म हो जाता है। जो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान बताते हैं कि सहज कर्म करो कौन्तेय, सहज कर्म करो तुम। सेवा सहज कर्म है। इसलिए हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हमको बार बार बताते हैं कि सेवा हमारी एटीट्यूड बनना चाहिए। तो भागवत वाहिनी का जब मीनिंग भगवान बता रहे थे तब भगवान ने बताया था कि भ का मतलब है भक्ति, ग का मतलब है ज्ञान, भाग व का मतलब है वैराग्य, साईराम। ज्ञान का मतलब है सब कुछ तू है, ये ज्ञान है। और इससे फिर वैराग्य ऑटोमेटिक। हाँ हो गए भैया, हो गए, लास्ट कर रहे जी भैया, थैंक यू। व का मतलब है वैराग्य, भाग व त का मतलब है त्याग। ऐसा अगर जीवन बन गया भागवत तो मतलब मुक्ति, मतलब हमारे मोह का क्षय, हमारे को जो भ्रम है उसका नाश, और भ्रम का नाश होते ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसको ही मुक्ति बोलते हैं। ऐसा हमारा होवे और हम सब जो बाबा देने को हमको आए थे वो मिलाए, वही हमारा वैदिक ज्ञान है। इसके अंदर और डीप, और 6 दिन तक आप जाने वाले, मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। शाम को हम प्रश्नोत्तर के रूप में वापस मिलेंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं हम फिर शाम को बात करेंगे। ओम श्री साई राम। साईराम मुरली भैया, we convey our heartfelt gratitude for sparing your valuable time and intellect to explain us about Swami's divine teaching. अभी जो मैंने इतना बात किया उसमें आप भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, फिर कौन किसको थैंक यू बोल रहा है? सही बात है भैया। अभी मैं हूँ और मैं हूँ, आप हूँ, इतना 1.25 घंटा सुनने के बाद भी थैंक यू बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो आप है वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो आप है। हम सब एक है। यूनिटी यही डिविनिटी है, इसको हम अनुभव करें। इसलिए एक ही वर्ड हमारे जबान पर हमेशा रहना चाहिए। किसी भी वेलकम में और किसी भी एंड में हमारे मुख में एक ही वर्ड होता है, साई राम और साई राम। साईराम साईराम। विद्यार्थी मान को अनुरोध, यही उपलब्ध ज्ञान को मनन करिवे एवं मन रे आंदोलित होता प्रश्न को आपण मानक पय उद्दिष्ट व्हाट्सएप ग्रुप रे पोस्ट करिवे। आपण माने निश्चित किछ प्रश्न ऑलरेडी चैट बॉक्स रे पोस्ट करछन्ती, से गुडी को मध्ये हमें नोट करि निजु। एही ज्ञान रूपक रस को आस्वादन करिया पे हमें माने अधिक रु अधिक प्रश्न पचारिबा, से सब को एकत्रित करी हमें माने मुरली भाई पाख को पठाइबु। से गुडी को 12टा पूर्व व्हाट्सएप ग्रुप रे पोस्ट कले हमें से गुडा को एकत्रित करिया को सुविधा हबो एवं से सब प्रश्नावली उपरे संध्या अधिवेशन रे आलोचना करे जिवो। एबे हमें माने महाप्रभु को दिव्य कंठ निश्चित भजन सुनिया पे अपेक्षा करिबा। साईराम। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म
ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म सत्यं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अनन्तं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ब्रह्म आनन्दं ज्ञानं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अनमनन्तं अनन्तं ब्रह्म शांति शांति शांति। शांति शांति शांति